Assalamu alaikum students. Welcome in the inorganic chemistry to lectures. As you can see, this presentation is submitted by Noor Fatma, and during this lecture we will study about redox reactions and amphoteric reactions in non-aqueous solvents. As you all know that we are studying about reactions in non-aqueous solvents. In the previous lecture, we have discussed about acid-base reaction and precipitation reaction in non-aqueous solvents. And in the present lecture, we will talk about redox reactions and amphoteric reactions in non-aqueous solvents. What are redox reactions? Redox reactions are the reactions in which one reactant is oxidized and the other is reduced. Both processes occur simultaneously, but one may be fast and the other may be slow. So we measure reduction potential. Redox reactions, these are also called oxidation reduction reactions. So I think you already know about this. In case of redox reaction, of course, one reactant is oxidized and the other is reduced. और इसको हम मेजर कर सकते हैं by the increase or decrease in oxidation number. For example, here we have two reactants A plus B. और इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये A और B जो हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में हैं. And you might know when the reactants these are in elemental form, then oxidation state number is considered as 0. तो ए और बी अगर एलिमेंटल फॉर्म में हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, राइट. और यहाँ पर ये देखें एरो साइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी. सो ए विल गेट +1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड बी विल गेट -1 ऑक्सीडेशन नंबर. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 to +1, जबकि बी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 to -1. तो वो वाला सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उसको उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हो गई. और वो सब्सटेंस वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो उसमें रिडक्शन हुई है, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, ठीक है. तो हमेशा ऐसे ही होता है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिक्रीज होगा, एक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा. The reactions such as combination, combustion and single replacement reactions all are examples of redox reactions. These all involve the transfer of electron from one chemical species to another. Redox reactions are involved in combustion, rusting, photosynthesis, respiration, batteries and many more. Most of the redox reactions taking place in the solvent are ionic. Sometimes a solvent may be susceptible to redox reaction. Example given, water is susceptible to reduction, right? So this is actually important. This point is important कि most of the redox reaction जो solutions के अंदर होते हैं, solvents के अंदर वो ionic होते हैं. और कई दफ़ा एक solvent जो है वो भी उसमें ability होती है कि वो reduce हो सके. For example, water जो है it has ability to accept hydrogen ion, and the addition of hydrogen ion, you people may know, actually you should know that addition of hydrogen is also a reduction process. तो वाटर के अंदर अगर एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और वो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा तो इसका मतलब है कि रिडक्शन हुई है. The strong reducing agents whose standard redox potential are greater than hydrogen atom in the electrochemical series cannot be used in aqueous system. So this is an important rule कि ऐसे reducing agents जिनका standard redox potential वो हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उनको हम एक्वस सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा नहीं होगा. अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ये हमारे पास एटम यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे पास जिंक है, ये हाइड्रोजन है और ये कॉपर है, ठीक है. तो यहाँ पर इनके ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ये रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं. अब जिंक का आप देखें ये है -0.76 वोल्ट, यानी जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कम है, राइट. और कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल एज यू कैन सी वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है.
तो अब इसमें क्या होगा कि जिंक जो है Zn ये एलिमेंटल फॉर्म में है प्लस कॉपर, राइट। ये जो है वो आयनिक फॉर्म में है Cu+2, राइट। तो अब क्या होगा कि कॉपर जो है वो मेटालिक फॉर्म में आ जाएगा और जिंक जो है वो आयनिक फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कॉपर जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले था +2, ठीक है। और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 से हो गया ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया और इसने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़ीरो से हो गया +2। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो ऐसे एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है या रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो कम होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉपर से कम है, 0.76 -0.76 वोल्ट, और कॉपर का है 0.34 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है। एज यू कैन सी हियर कि कॉपर ने जो है वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो असल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हर नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी एक्चुअली उसका क्या होता है कि हमारे पास उसका जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज़्यादा होता है, राइट। और इस वजह से वो अपने ऊपर तमाम जो एलिमेंट हैं उनको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। redox reactions are very common in aqueous and non-aqueous solvents। अब ये दोनों सॉल्वेंट्स में कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये स्टेनस क्लोराइड प्लस मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये बना देगा स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड प्लस Hg2Cl2। और ये जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है ये सिल्की टाइप प्रेसिपिटेट होगा जो कि नीचे बैठ जाएगा। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से है ये आप लोगों का होमवर्क है, इस पे आप इसने आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें आप पहले इन तमाम एलिमेंट्स को इनकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना वो स्टेनस क्लोराइड है ये, तो स्टेनस की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और ये क्लोराइड जो है इसकी एक क्लोराइड की -1 होती है तो दो क्लोराइड्स की हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा +2 -2। अब ये हमने +2 -2 इसलिए करना है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने का दूसरा रूल है। पहला तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो होती है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड दिस इज ज़ीरो, दिस इज द सेकंड रूल। तो अब इसमें देखें यहाँ पर +2 ये -2 तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इस तरफ आते हैं, ये -4 है स्टेनिक क्लोराइड, ये स्टेनस है +2 वाला, और इसकी अगर ये -4 है, 4 क्लोराइड्स हैं तो इसकी हो जाएगी +4। तो इसका मतलब कि यहाँ इस कंपाउंड में स्टेनस क्लोराइड में इसकी +2 थी और इसमें इसकी होगी +4, तो ये +2 से इंक्रीज हुई +4। सो दिस इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब स्टेनस की ऑक्सीडेशन हुई टू स्टेनिक। सो इस तरह से आपने इसको हल करना है। अच्छा जी, अब इसमें ये जो मर्क्यूरस है दिस इज अनस्टेबल, सो इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म एज Hg2+2, ठीक है। अब ये मर्क्यूरस है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड बन रहा है, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, इसमें मरकरी की +2 है, जबकि ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसमें ये मर्क्यूरस की Hg+1 है। तो चूंकि दो Hg2 हैं, ये Hg2 है यानी, तो वो ये +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये इसकी Hg+2 थी और यहाँ पर इसकी है मतलब दो हैं, तो एक की सिंगल की +1 है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +2 टू +1। दूसरी इन्होंने ये रीज़न बताई हुई है कि जो मर्क्यूरस आयन होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये डाइमर फॉर्म में
एग्जिस्ट करता है, यानी इस तरह से Hg2 और फिर इसकी वो +2 आ जाएगी। Likewise, we have the very familiar redox reaction ferrous sulfate plus cesium sulfate, और ये फेरिक सल्फेट प्लस सीजियम सल्फेट ये बन रहा है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे समझाया है उसी तरीके से आपने ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो असाइन करनी है। इसके बाद ये अमोनिया का रिएक्शन है सोडियम के साथ, ये सोडियम अमाइड बनता है प्लस हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ये हाफ मॉलिक्यूल है बेशक, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगी, अमोनिया की अमोनिया में नाइट्रोजन की +3 और हाइड्रोजन ये अमोनिया है तो हाइड्रोजन की होगी +3 और नाइट्रोजन की -3। ठीक है, इसमें सोडियम अमाइड में आपने कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर फिर आपने ये खुद से देखना है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। Alkali, alkaline and F block elements form blue colored solutions in liquid ammonia. If metal concentrations increases, then solution color changes to brown. राइट, तो अब इसमें जो अल्कली है, अल्कलाइन है, और इसके अलावा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो सॉल्यूशन कलर चेंज होता है ब्राउन कलर में। राइट, अच्छा आपको ना ये वाला रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे इररेलेवेंट है, इसकी एज सच कोई रेलेवेंसी नहीं बनती। Now we will discuss about amphoteric reactions. So according to Bronsted-Lowry definition, an acid is defined as a species which denotes a proton, that is a hydrogen ion in a reaction, and a base as one which receives a proton. इसको example given इसकी है water. Water जो है this is an amphoteric substance. It can act as an either acid and a base in chemical reactions. अब किस तरह से वो एसिड के तौर पे और बेस के तौर पे केमिकल रिएक्शन में एक्ट कर सकता है, यू नो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट टू विच वाटर इज गोइंग टू रिएक्ट। ठीक है, अगर आप वाटर को किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ ट्रीट करवाएं जिसकी बेसिक टेंडेंसी वाटर से ज़्यादा है तो वाटर उसमें एसिड के तौर पर एक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। तो जो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन एक्ट एज an acid as well as they can also act as a base. When reacting with a strong acid, water acts as a base. For instance, water receives a hydrogen ion from HCl when hydrochloric acid is reacted with water. ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अभी रिएक्टेंट है ना, तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे, और इसमें मैं इसकी कोई खास डिटेल में नहीं जाऊंगी, इस रिएक्शन के मतलब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह से एसिड और बेस ये आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट करेगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस इसके पेयर ये बन जाता है। When reacting with a strong base, it acts as an acid. In the reaction with ammonia, water denotes a hydrogen ion and is thus acting as an acid. ठीक है, तो ये ठीक है। अब ये अमोनिया है, अमोनिया जो है उसकी बेसिक टेंडेंसी वाटर से ज़्यादा है, तो इसलिए वाटर यहाँ पर एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। वाटर अपना एक हाइड्रोजन आयन अमोनिया को दे देगा, ये अमोनियम आयन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से हमने देखा कि इस रिएक्शन में वाटर बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल व्हिच इज वेरी वेल एक्सप्लेनिंग द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ वाटर। So we were discussing about the tendency of water as amphoteric species. ठीक है, तो लीवियस एसिड कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी हम देखें तो वाटर जो है दिस कैन एक्ट
एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ठीक है, वो किस तरह से कि लीवस बेस हम एक ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है विच इट कैन डोनेट। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास आपको पता है दो लॉन पेयर्स हैं, तो इस तरह से वाटर लीवस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है क्योंकि उसमें से एक लॉन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर है वो ये दे सकता है, दस एक्टिंग एज अ लीवस बेस। अलोंगसाइड इट कैन आल्सो एक्ट एज अ लीवस एसिड के तौर पर भी ये एक्ट कर सकता है ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर वाटर का हाइड्रोजन एक ऐसी एटम के साथ अटैच हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए वो वाला एटम दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो इस तरह से वहाँ पर वाटर लीवस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट कर रहा होगा विच विल बी कैपेबल ऑफ combining और विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से भी वाटर जो है उसका एम्फोटेरिक बिहेवियर साबित होता है। इसी तरह जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है, दिस आल्सो डिस्क्राइब्स वाटर एज अ वीक हार्ड एसिड एंड अ वीक हार्ड बेस। वो भी वाटर को इसी तरह से डिस्क्राइब करती है कि वाटर दिस कैन एक्ट एज अ वीक हार्ड एसिड एज वेल एज अ वीक हार्ड बेस। ठीक है, तो ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कोई भी यू नो हाइड्रोजन आयन है, राइट, एंड देन इट कैन एक्ट एज अ लीवस एसिड, और ये आपके पास वाटर है। नाउ वाटर इट कैन एक्ट एज लीवस बेस, तो ये हाइड्रोनियम आयन इससे बन जाएगा, यानी वाटर जो है वो लीवस बेस के तौर पर एक्ट करते हुए इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हुए हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है फेरिक आयन विच विल एक्ट एज लीवस एसिड, जबकि यहाँ पर फिर वाटर जो है लीवस बेस के तौर पर एक्ट करेगा और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, यानी हेक्सा एक्वा आयरन, और +3 चार्ज जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसमें एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है और वाटर जो है यहाँ पे लीवस बेस के तौर पर एक्ट करेगा। और यहाँ पर वाटर किस तरह लीवस बेस के तौर पर एक्ट करेगा कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर जो आपके पास है लॉन पेयर, ठीक है, तो वो लॉन पेयर वाटर लिगेंड के तौर पर एक्ट करते हुए इस आयरन जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको ये डोनेट कर देगा। ठीक है, और इस तरह से वाटर जो है लीवस बेस के तौर पे यहाँ पे एक्ट करेगा, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर देखें वाटर लीवस एसिड के तौर पर वाटर एक्ट करेगा, राइट। तो ये देखें यहाँ पर वाटर लीवस एसिड के तौर पर इस तरह से एक्ट करेगा कि अब ये क्लोराइड के साथ जब इंटरेक्शन करेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्लोराइड आयन अपना ये लॉन पेयर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ कर लेगा और यहाँ पर फिर ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज जो है ये वाटर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखें ये क्लोराइड ने अपना जो ये नेगेटिव आयन था ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर लिया है ये ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से इन रिएक्शंस में हमने देखा कि वाटर जो है इन ऊपर वाले दो रिएक्शंस में लीवस बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये लीवस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। सो वाटर इज प्रूविंग इटसेल्फ एन एम्फोटेरिक स्पीशी। Right, so this slide, this is quite informative. अब अगर इसमें आप देखें वी हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल के दरमियान वाला हिस्सा है। आमतौर पर ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, लेकिन ये ब्रीलियम ऑक्साइड जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का टॉप वाला एलिमेंट है। इसका बिहेवियर नीचे वाले एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर हैं उससे फ़र्क होता है, तो इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हियर वी हैव एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, इसमें फिर ब्रीलियम का हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रीलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, एज वेल एज ब्रीलियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक oxides as well as hydroxide. Likewise, here we have lead oxide, here we have lead hydroxide, ठीक है, stannous oxide, stannous hydroxide, and then chromium oxide and chromium hydroxide. So these are amphoteric
कंपाउंड्स। इसके अलावा एम्फोटेरिक जो मेटल्स हैं वो है ब्रीलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड स्टेनस। इसको टिन कह सकते हैं कॉमनली, ठीक है, टिन। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर +2 हो तो इसको स्टेनस बोलेंगे, अगर +4 हो तो स्टेनिक बोलेंगे। तो एम्फोटेरिक जो कंपाउंड्स होते हैं दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। So this is the last slide, and in this we will discuss not only the amphoteric behavior in water but also in liquid ammonia, right? So amphoteric behavior in water, this is explained by this reaction in which you can see that zinc chloride is reacting with potassium hydroxide, और जिंक हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसमें ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये पहले अपने हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करता है, तो ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ठीक है, और साथ में ये 2KCl बन रहा है। इसी रिएक्शन को अगर फर्दर प्रोसीड करते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड फर्दर जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर अपने हाइड्रोक्साइड आयन दे नहीं रहा, बल्कि एज अ होल इसके साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। तो इस तरह से ये वाटर के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एम्फोटेरिक बिहेवियर है, जहाँ पर ये एक जगह पे बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है और एक जगह पे ये बेस के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा। Likewise, in liquid ammonia, we can see the reaction of some metallic amines. तो मेटेलिक अमाइंस जो हैं वो भी लिक्विड अमोनिया में एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, लाइक many oxides and hydroxides, ठीक है। सो हियर वी हैव पोटाशियम अमाइड, और इसका इसका भी वही है कि पहले ये वाला पोटाशियम अमाइड जो है जिंक क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करके जिंक अमाइड का वाइट पीपीटी बनता है, तो यहाँ पर ये अपने अमाइड आयन सोल्यूशन के अंदर ट्रांसफर कर देता है और वो सोल्यूशन के अंदर जिंक के साथ मिलके जिंक अमाइड बना देते हैं +2KCl। अब दूसरे ये रिएक्शन फर्दर जब प्रोसीड करे तो जिंक अमाइड का रिएक्शन फिर पोटाशियम अमाइड के साथ, ठीक है। तो अब जो है ये अपने अमाइड आयंस नहीं देता, बल्कि इसके साथ मिलके यानी जिंक अमाइड के साथ मिलके ये अगेन ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। तो इस तरह से लिक्विड अमोनिया के अंदर ये वाला मेटेलिक जो अमाइन है विच इज पोटाशियम अमाइड, सॉरी अमाइड है ये पोटाशियम अमाइड। तो यहाँ पर ये अपना अमाइड आयन देता है और यहाँ पे नहीं देता। तो इस तरह ये एक रिमूवल ऑफ अमाइड आयन इज लाइक काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं वो एनायनिक स्पीशीज सोल्यूशन के अंदर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो या अमाइड हो, तो एक जगह पे ये सोल्यूशन के अंदर एनायनिक स्पीशी इन द फॉर्म ऑफ हियर हाइड्रोक्साइड आयन एंड इन द फॉर्म ऑफ हियर अमाइड आयन वो लिबरेट करते हैं, बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। जबकि यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में ना तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ना ही पोटाशियम अमाइड अपने नेगेटिव आयंस सोल्यूशन के अंदर लिबरेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये बेसिक करेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह वाटर के अंदर या लिक्विड अमोनिया के अंदर स्पीशीज जो हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करती हैं। All acids which are strong acids in water react completely with ammonia to form ammonium ions, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वाटर के अंदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं अमोनिया के अंदर भी, और एसिड स्ट्रेंथ जो है लेवल्ड हो जाती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम आयन। तो इसमें देखें ये परक्लोरिक एसिड है, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमोनिया एज वेल। तो ये क्लोरेट आयन बन जाएगा प्लस अमोनियम आयन बन जाएगा। इसी तरह HNO3 इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये नाइट्रेट आयन बन जाएगा प्लस NH4 प्लस। Acid strength equivalent to ammonium ion as hydronium ion in water. Now acidic character is due to ammonium ions, that is leveled. All acids which behave as weak acids in water with pKa approximately 12 react completely with ammonia and hence act as strong acids in ammonia. अब यहाँ पर ये डिफरेंस है, यानी वो एसिड जो वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग है वो अमोनिया के अंदर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एसिड जो वाटर के अंदर वीक हैं और pKa वैल्यू उनकी 12 तक जाती है, अमोनिया के अंदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक है। अब वाटर के अंदर जो वीक एसिड्स हैं
वो अमोनिया के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं। ये एसिटिक एसिड है प्लस अमोनिया, तो ये अमोनियम एसीटेट बन जाता है कम्प्लीटली। और अमोनियम एसीटेट जो है ना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वो सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयंस दे देगा, और इस तरह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया के अंदर बढ़ जाएगी एसिटिक एसिड की, लेकिन वाटर के अंदर यू नो दिस इज अ वीक एसिड। इस तरह HCN प्लस NH3 ये अमोनियम साइनाइड बना देगा, अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसी तरह H2SO4 प्लस, सॉरी ये H2SO4 नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, ये H2CO3 है, या बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर फिर ये जो है वो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा, ये H2SO4 नहीं है। प्लीज़ इसको बुक से देख के करेक्ट कर लें, यहाँ पर ये कार्बोनिक एसिड आएगा। और वो कार्बोनिक एसिड अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। और वाटर के अंदर आपको पता है कि वो वीक एसिड है, लेकिन अमोनिया के अंदर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑल दीज एसिड्स हैव pKa अबव 12, यानी ये वाले जो एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है और बाइकार्बोनिक एसिड है, ठीक है। हेयर दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन लिक्विड अमोनिया, जबकि ये वाटर के अंदर ये वीक एसिड्स हैं। सो दिस वाज इंटरेस्टिंग एंड समवट डिफिकल्ट लेक्चर। मुझे भी इसे समझने में कुछ देर लगी है। होप यू पीपल would understand it, and if there is any problem you are very welcome to ask. Okay, Allah Hafiz, until next lecture.